I'm audible to everyone. Hello. Yes. Yes, sir. Okay. Good evening, everyone. कौन लोग हैं इधर? Avinshu, Richa. Acha, all of you are just now going to class 12th, right? You have just finished your class 11. Someone is there from this crash course? Yes, sir. Yes, sir. Who is it? Richa. Shreyans. Richa and Shreya. Yes, sir. Okay. So, one second. One second, my screen, something is wrong with my screen. So, okay, now it's coming clear. Okay, so we are starting class 12 syllabus. So class 12 has many chapters from physical, organic and inorganic. So I'll just post in the, I'll just tell in which order we are going to finish the chapter so that all of you can prepare accordingly. So first we are starting this salt analysis. Okay. Then after this we'll study electrochemistry. Then liquid solutions. Okay. Then solid state. Okay. After this P block elements. Okay. And after this we'll go to these chapters, organic chapters, organic chemistry, which is, if you are having NCERT, so part 2 of this book, that will be NCERT. Organic chemistry, alkyl halides to alcohols, then aldehyde ketones, then carboxylic acid esters, then practical organic chemistry. Like this. So in this order we are going to finish this syllabus. So let us start. Today is the first chapter which we are starting, that is salt analysis. Okay. Salt analysis is a very crucial chapter in inorganic chemistry. Okay. So generally when you prepare for IIT JEE, okay, especially when you prepare chemistry, so students commit a lot of sins. You know? For example, in your class 11th, you must have committed some sins, like when you were studying this S block elements or hydrogen atoms. So then you would have skipped this chapter. You know? So usually these chapters are also taught in the end, so that students, they just leave this chapter like this. So that is why inorganic chemistry looks very boring, because no one is interested in this. And like this hydrogen, or in your class 11th, this S block elements, okay, or this boron carbon family, okay. Generally students when they study this chapter, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब topics, बोरोन कार्बन फैमिली, जनरली इन टॉपिक्स को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं. तो ये सॉल्ट एनालिसिस ऐसा चैप्टर है, देखिए ना कौन है. तो सॉल्ट एनालिसिस ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सारे पुराने पाप धोने का मौका मिलेगा. ठीक है, अगर ये चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो काफी हद तक आपका हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो भी पुराना छूटा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो हम लोग जानबूझ के छोड़ देते हैं, ठीक है, तो काफी हद तक क्या होता है, कॉम्पेंसेट हो जाता है. ठीक है, दिस इज लाइक बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एक तरह से अगर ये चैप्टर अगर किसी का अच्छा हो गया, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरऑल हम मान सकते हैं कि उसका अच्छा चल रहा है. ठीक है,
तो हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, हम लोग कुछ कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसका कुछ ऐसे शुरुआत होगा जैसे an unknown inorganic compound is made to react with this and forms a green precipitate or forms a brown colored precipitate when reacted with this. So which of the following elements are present in that compound, like this. ये चैप्टर आप लोग को करना, ठीक है। तो सॉल्ट एनालिसिस में सॉल्ट का दो पार्ट होता है, ठीक है, सबको पता है। एक पार्ट होता है हमारा कटायन और दूसरा पार्ट क्या होता है, अनायंस, ठीक है। तो सारे कटायंस और अनायंस के जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो काफी हद तक आपका, और ये चैप्टर अगर अच्छा है मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरऑल अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें अनायन से शुरू करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग कटायंस पे जाते हैं। तो अनायनिक पोर्शन हमारा कहाँ से आता है किसी सॉल्ट का, वो किसी एसिड से आता है, दिस कम्स फ्रॉम एसिड, ठीक है। और जो कटायनिक पोर्शन है दिस जनरली कम्स फ्रॉम बेसिस, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से सारे अनायंस को पहले देखते हैं, फिर हम लोग सेकंड पार्ट इस चैप्टर का करेंगे जिसमें हम लोग कटायंस को देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, अनायंस, ठीक है। तो जितने भी अनायंस है, जो मेजर अनायंस है, उनको हम लोग कुछ कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। दो क्लास में सबसे पहले बांटते हैं, इसको हम बांट दिए। वन इज क्लास ए, अनदर इज क्लास बी, ठीक है। क्लास ए में ऐसे अनायन होते हैं विच फॉर्म volatile product with acid. Class A anions forms volatile product with acid, ठीक है। और क्लास बी which do not form or volatile compound with acids, ठीक है। तो ये आपका कुछ कुछ एनालिसिस क्लास ए में जाएंगे, कुछ क्लास बी में जाएंगे। फिर क्लास ए हम लोग फर्दर दो क्लास में डालते हैं। क्लास ए, दिस इज क्लास ए, इसको दो क्लास नहीं कहते हैं हम लोग, ग्रुप कह देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाए। तो इसको दो ग्रुप में हम डालते हैं, ग्रुप 1 एंड लेट अस से ग्रुप 2, ठीक है। तो ग्रुप 1 के जो हमारे अनायंस है उसमें हम लोग यहाँ पे जो एसिड डाल रहे हैं वो डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl, ठीक है। ये एसिड हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे वोलेटाइल प्रोडक्ट कुछ हमारा अनायंस का बन जाता है। ग्रुप 2 में ऐसे अनायंस आएंगे जो डाइल्यूट H2SO4 या HCl के साथ वोलेटाइल कंपाउंड नहीं देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। तो वो सब अनायंस हमारे जाएंगे ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 का एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, बारी बारी से। ये हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1। तो इसके अंदर हमारे कुछ 6-7 अनायंस आते हैं, बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला अनायन है कार्बोनेट अनायन, ठीक है। इसको कहीं से अगर H+ मिले तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, CO2 गैस निकलता है, ठीक है। तो वोलेटाइल प्रोडक्ट हमारा बन गया, ठीक है। इसके अलावा इसी का छोटा भाई है कार्बोनेट अनायन का बाइकार्बोनेट अनायन। इसको भी कहीं से अगर H+ मिल जाए तो CO2 गैस ही रिलीज करता है। उसके बाद इसका अनायन है सल्फेट अनायन, इसमें से अगर H+ मिले इसको कहीं से SO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। फिर सल्फेट का छोटा भाई बाइसल्फेट, इसको H+ मिले, ये भी क्या SO2 गैस रिलीज करेगा। कहीं से अगर सल्फाइड हो, इसको अगर H+ मिले कहीं से H2S गैस रिलीज होगा, ठीक है। एक और ये अनायन होता है हमारा H2O3 2-। इस अनायन को आप लोगों ने देखा है पहले कभी, कहाँ देखा है इस अनायन को, H2O3 2-? किसी को याद है कुछ? 11th का टॉपिक टाइट्रेशन करके कुछ पढ़ा था किसी जमाने में, आयोडोमेट्रिक आयोडीमेट्रिक, कुछ याद है?
बोलो, ये कौन सा आयन है? हेलो हेलो, am I audible? हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ओके, तो हम ये कह रहे हैं, ये अनायन, इस अनायन का नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं थायोसल्फेट। ठीक है, हाँ, तो थायोसल्फेट अनायन अगर हो तो यहाँ पे दो चीज होता है, एक तो कोलाइडल सल्फर मिलता है और इसके साथ हम लोग को क्या मिलता है? SO2 मिलता है। सिमिलरली एक और अनायन है हमारे पास, नाइट्राइट। ठीक है, इसमें अगर H+ आ जाए तो हम लोग को NO2 गैस मिलेगा। ठीक है, तो हर एक अनायन में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वोलेटाइल हमारे गैसेस फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हमारे ग्रुप 1 में जाएंगे। ग्रुप 2 में वो अनायन जाएंगे जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ नहीं। तो उसकी लिस्ट इधर लिख लेते हैं अपन। ग्रुप 2 जितने भी हमारे हैलोजेंस है, ठीक है, वो हमारे ग्रुप 2 में आ जाएंगे। जैसे Cl- हो, इसको अगर H+ मिले तो HCl गैस बन के रिलीज होगा। सिमिलरली Br- हो, इसको अगर H+ मिले तो SPr बन के रिलीज होगा। I-, इसको अगर H+ मिले तो HI नहीं बनेगा, यहाँ पे I2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि HI बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम लोगों ने अभी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा, उसमें रेड फास्फोरस प्लस HI वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। F- जो होता है, ये हमारा क्या होता है, HF बन के निकलता है। ऑक्जेलेट अनायन C2O4 2-, यहाँ पे दो गैस रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर एक और पॉपुलर है नाइट्रेट अनायन, इसके कारण हमको NO2 गैस निकलता है। ठीक है, देखो NO2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन क्वेश्चन में फर्क कैसे पड़ेगा, इसको तो आइडेंटिफाई कर लेंगे अपन। बस ये देखने का क्वेश्चन में कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं कि डाइल्यूट। और क्वेश्चन में ऐसा है कि अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीजेस NO2 ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमारा वहाँ पे अनायन कौन सा है, नाइट्रेट। ठीक है, अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ NO2 दे रहा है तो नाइट्राइट। ठीक है, तो ये सब आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये नोट्स हम डाल देंगे, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा क्लास बी। क्लास बी के जो हमारे ऑर्गेनिक, ये आ गया हमारा क्लास बी। क्लास बी, आप लोग को अगर याद हो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सब कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट एसिड के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो फिर इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन? इसको आइडेंटिफाई करते हैं इसके प्रेसिपिटेट के कारण, या फिर इसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें अगेन दीज डू नॉट फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड्स, डू नॉट फॉर वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो फिर इसको हम लोग आइडेंटिफाई ऑन रिएक्शन विथ, ऑब्वियसली ऑन रिएक्शन एसिड। ठीक है, इसको फिर फर्दर अपन दो कैटेगरी में बांट देते हैं, दैट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 होगा जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे बाय देयर प्रेसिपिटेट्स, उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेट्स होगा। ब्लर क्यों आ रहा है, फोकस नहीं हो रहा है कैमरा, क्या हो गया इसको? कैमरा फोकस क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग को ये स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है ना? नो नहीं सर। सर। नो सर। नो, एक मिनट, क्या करें फिर? चलो फ्लैश जला दे, अब दिख रहा है? सर डिफोकस हो जा। डी फोकस हो जा रहा है, डी फोकस, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये? अब ठीक है।
हाँ अब ठीक तो है, तो लेकिन सेकेंड कल ग्रुप, का ये अच्छा सेकेंड ग्रुप हमारे क्या होता है, पहला ग्रुप हो गया जो उनके पीपीटी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड ग्रुप क्या होगा, विच इज आइडेंटिफाइड बाय देयर रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिडॉक्स रिएक्शंस होता है, उसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसकी लिस्ट लिख लो आप लोग। ग्रुप वन में कौन कौन से हमारे आ जाएंगे, ग्रुप वन हो गया हमारा, ग्रुप वन, इसमें हमारा सबसे पहले सल्फेट आएगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सल्फेट, ठीक है, जैसे BaSO4, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का कलर क्या होता है, लैब में किसने किया एक्सपेरिमेंट, हेलो? वाइट। वाइट होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे सल्फेट बनाएंगे। सिमिलरली PO4 3- जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट का एक छोटा भाई है फॉस्फोरस के नीचे पीरियोडिक टेबल पे क्या होता है, आर्सेनिक। तो ASO3 3-, और एक हमारा होता है क्रोमेट, CrO4 2-। ठीक है, तो इन सब का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेट होता है। सेकेंड कैटेगरी में वो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे अनायंस आ जाएंगे जिनका कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस होगा। ठीक है, तो ये सब अनायन बहुत बार हम लोग के सामने आ चुका है पहले। MnO4- बहुत बार टाइट्रेशन में यूज किए हैं। ठीक है, एसिड बेस बैन 153 कुछ कुछ याद आएगा आपको। CrO4-, सॉरी CrO4 2-, देन डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। ठीक है, तो ये सब हम लोग को टाइट्रेशन में ये सब बहुत बार हम लोगों ने देखा है, इनका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपके अनायंस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हमारे में क्या हो गया, बैटरी लो है, एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई जस्ट गेट माय चार्जर। जवाब। सर आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्लियर है। तो हम लोग अनायंस को देखते हैं बारी बारी से। क्लास ए का पहले देखते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ क्या होता था, वोलेटाइल कंपाउंड्स बनते थे। तो कुछ गैसेस का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेल होता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन गैसेस, आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे होता है, जैसे CO2 है। ठीक है, CO2 का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है क्या, ये ब्रिस्क इफरवेसेंस देता है। फिर SO2 है, SO2 is suffocating pungent smell. Then there is H2S. H2S smells like rotten egg. ठीक है, तो अगर किसी को सड़े हुए अंडे सुनने का अगर आदत है, ठीक है, तो H2S बहुत अच्छे से वो पहचान पाएगा। फिर होता है हमारा सल्फर। सल्फर क्या होता है, ये येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी देता है, येलो व्हाइट टर्बिडिटी। ठीक है, और क्या, हाँ, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड है, ये हमारा विनेगर की तरह स्मेल करता है, विनेगर लाइक स्मेल। ठीक है, देन NO2। NO2 का कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, अच्छा NO2 कलर क्या होता है, Unpaired आप लोग को पता electrons. होगा कि जनरली जब, हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब भी हमारे पास जो अगर कुछ पैरामेटिक मैग्नेटिक स्पीशीज हो जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसके कारण क्या होता है, कलर आता है। तो NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण इसका कलर आ रहा है ब्राउन कलर। ठीक है, और फर्दर देखते हैं और कौन कौन से गैसेस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्या था, HCl। HCl
HCl गैस का क्या स्मेल है? इसका कलरलेस होता है, ठीक है। और एक और टेस्ट है इसका, ये डेंस व्हाइट फ्यूम्स देता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स विथ NH3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो NH3 सॉल्यूशन से HCl पास करेंगे तो NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, which is the cause of these dense white fumes, ठीक है। तो ये होता है आपका HCl। फिर अनदर गैस है दैट इज Br2। Br2 का ब्राउन रेड फ्यूम्स होता है, ब्राउन रेड या रेड ब्राउन फ्यूम्स होता है। देन I2 आयोडीन वायलेट होता है। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक है इट बर्न्स विथ ब्लू फिल्म, बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, ठीक है। और एक और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, आपको तो याद रखना, PdCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2O, ये क्या करता है, दिस गिव्स PD प्लस CO2 प्लस 2HCl, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका आपको ब्लैक PPT मिलता है, ठीक है। इस चैप्टर के अराउंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आते रहेंगे, ठीक है। तो वो सब आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर का। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हम लोग नंबर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन नंबर 1 हो गया जो आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हुआ क्योंकि हमारा Br2 भी क्या है, ब्राउन रेड फ्यूम्स, और NO2 भी हमारा क्या है, ब्राउन फ्यूम्स। तो इस दोनों के बीच कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो यहाँ पे Br2 वर्सेस NO2, कलर वाइज तो दोनों ब्राउन है, ठीक है। तो अब दोनों के बीच हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, सर उनके दोनों में, कन्फर्मेटरी टेस्ट। हाँ उनके कंफर्मेटरी टेस्ट भी आएंगे बाद में, ठीक है। अभी तो हम लोग बस बेसिक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो Br2 हमारा जो क्या होता है, इट इम्पार्ट्स ब्राउन कलर टू एक्वस सॉल्यूशन, दिस इम्पार्ट्स ब्राउन कलर टू एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और NO2 को अगर पानी में डालो तो क्या होगा, अच्छा लेटेस्ट से आपके सामने ये क्वेश्चन है, NO2 प्लस H2, सोचो इसमें क्या होगा, HNO3। HNO3 और अब देखो जैसे आपने HNO3 बोला तो आपको एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे प्लस क्या हुआ NO। है, प्लस NO। यस सर। नहीं, NO नहीं होगा, ठीक है। ये रिएक्शंस हम लोग उसमें पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, ठीक है। और यहाँ से ये HNO3 में गया जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, दूसरा कंपाउंड ऐसा बनेगा जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है। तो HNO2 बनता है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, मिक्सचर बनता है। ये हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे आई थिंक, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, उनके हाइड्रोलिसिस पे एसिड बनेगा, ठीक है। तो लाइक दिस, तो इसका जो ब्राउन कलर है Br2 का एक्वस सॉल्यूशन में ब्राउन कलर आ जाता है, NO2 का ब्राउन कलर नहीं आ पाता, क्यों, बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन कि यहाँ पे इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अब जा चुका है, ठीक है। तो अब ये कलर इम्पार्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। अच्छा हम लोग ये देख रहे थे हाइड्रोलिसिस, अगर लेटेस्ट से ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आपको रिएक्शन दे दे, P2O5 प्लस H2O, क्या होना चाहिए, सोचो थोड़ा।
Sir, not visible. This is not visible. For everyone, it is not visible. Yes, हेलो, sir. बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. यस सर, नो सर. ओके, आई थिंक आपके साइड से कुछ कनेक्टिविटी इशू है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का स्पीड बहुत अच्छा है. ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करो. अब देखो किसी अच्छी जगह पे जाओ जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा हो. लाइक दिस. तो जनरली जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं सर उसको इसमें हम वाटर में डालेंगे तो H3PO4 बनेगा. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, H3PO4 बनेगा. यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ पे भी +5. सिमिलरली NO2 की जगह अगर यहाँ पे हमारा N2O3 रहता, उसके हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है? सोचो तो. सर वो N2 है. N2O3 है, इसके हाइड्रोलिसिस पे क्या बनेगा? Sir, HNO2. HNO2. वेरी गुड. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ऑक्साइड यहाँ पे नॉन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्सीडेशन स्टेट रिटेन होता है. ठीक है, अब नाइट्रोजन के दो एसिड अपने पास, +3 वाले एक नाइट्रस एसिड और +5 वाला एक नाइट्रिक एसिड. और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन +4 में है, तो इसलिए दोनों का मिक्सचर बनता है. ठीक है, नहीं तो जनरली हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर रिटेन रहता है, जैसे यहाँ पे फास्फोरस का रिटेन. ठीक है, लाइक दिस. तो ये सब ऐसे ही साइड इन्फॉर्मेशन था. आप लोग इस सबको ध्यान रखिए. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक. इसके बाद हम लोग अभी अनायंस में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक साइड टॉपिक की तरह एक एक पोर्शन पढ़ लेते हैं जिसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. My screen is having some problems here. अब क्लियर है? हेलो. No, sir. No, sir. No, sir. हेलो. हाँ सर क्लियर है. स्क्रीन पे जो दिस इज वेरी पावरफुल रिएक्शन, ये आप लोगों को क्या करना है, मेमोराइज करना है इसको. ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट कंपाउंड. देन अमोनियम के और भी कंपाउंड्स है. अमोनियम कंपाउंड्स आर एक्चुअली वेरी वोलेटाइल. ठीक है, एक और कंपाउंड है इसका NH4 NO2, अमोनियम नाइट्रेट. इसको हीट करो, अगेन नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है और H2O 2H2. उसके बाद NH4 NO3, इसको हीट करो तो N2O प्लस H2. ठीक है, अगर इसको और विगरस हीटिंग करो, हीटिंग अबव 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या होता है, N2O फर्दर टूट जाता है, नाइट्रोजन हाफ ऑक्सीजन प्लस H2O. ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस बहुत आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. अनदर रिएक्शन NH4 ClO3, इसको अगर आप हीट करो, N2 गैस रिलीज होता है, Cl2 गैस रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और H2O रिलीज होता है. ठीक है, सिमिलरली NH4Cl भी अगर आप ले लो, सॉरी NH4ClO4 पर क्लोरीन. ठीक है, सेम प्रोडक्ट्स. ठीक है, नाइट्रोजन
Cl2O2 और क्या H2। ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस आपके लिए है बहुत इम्पोर्टेंट। सो लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ तो हमने क्लोरेट लिखा है, अगर यहाँ पे ब्रोमेट या फिर आयोडेट होता तो सिमिलर रिएक्शन फॉर BrO3 माइनस और IO3 माइनस और BrO4 माइनस लाइक दिस। ठीक है, तो सिमिलर रिएक्शन ये हमारे दूसरे हैलोजेंस भी शो करेंगे। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन सब में से है वोल्केनो रिएक्शन। ठीक है, IIT JEE में आई थिंक अराउंड 2-3 टाइम्स अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कभी मल्टी करेक्ट के एक ऑप्शन में ये आ गया, ठीक है, कभी ये पूरा क्वेश्चन ही इस पे बेस्ड आ गया। तो ये रिएक्शन वोल्केनो रिएक्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, स्क्रीन सबको क्लियरली दिख रहा है ना? No, sir. No, sir. फिर क्या हो गया? सर वीडियो भी पॉज हो रही है बीच में। वीडियो पॉज हो रही है? सर ऑडियो आप थोड़ा क्लियर? एक बार हाँ बोलो। आप थोड़ा हाथ को एक बार शेक Yes, sir. कीजिए। हाँ सर ठीक है, स्मूथ चल। ठीक है ना? चलो ठीक है। तो वोल्केनो रिएक्शन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस हैज कम मेनी टाइम्स इन एग्जाम। ओके, सिमिलर रिएक्शंस हम लोग अनायंस के लिए और देख सकते हैं, जैसे ये सब तो वैसे रिएक्शंस हुए जिसमें अनायनिक पार्ट हमारा क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जैसे Cr2O72 माइनस Cr2O72 माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रेट NO3 माइनस बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर क्लोरेट ये सब क्या है, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अनायंस। ठीक है, तो दिस वाज टाइप 1। anion is highly oxidizing। यहाँ पे अनायन क्या है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। इन सब केस में देख लो, यहाँ पे डाइक्रोमेट, यहाँ पे नाइट्राइट, नाइट्रेट, क्लोरेट और परक्लोरेट, ये सब अनायंस हमारे क्या है, दीज आर वेरी हाईली ऑक्सीडाइजिंग। टाइप 2 सब अमोनियम के कंपाउंड्स है, ठीक है, लेकिन अब इनमें क्या है, अनायंस आर नॉट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा अनायन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, ठीक है, इसको हीट करो क्या बन जाएगा, NH3 प्लस HCl। ठीक है, सिमिलरली NH4O2S, इसको हीट करके क्या बन जाएगा, NH3 प्लस H2S। ठीक है, NH4O2CO3, इसको हीट करो, NH3CO2H2O। NH4O2SO4, इसको हीट करो, NH3 प्लस H2SO4। Similarly CH3COO NH4 प्लस, इसको हीट करो, CH3COOH प्लस NH3। तो इन सब में अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर हमारा कंपाउंड क्या है, NH4 होल 3 PO4 अमोनियम फॉस्फेट।
इसको अगर हीट करो NH3 प्लस P2O5 प्लस H2, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से गेस कर सकते हैं एक्चुअली NH3 बस रिलीज हो रहा है और बाकी जो H प्लस है वो अनायन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे H प्लस सल्फाइड के साथ H2S बना दिया, यहाँ पे H प्लस H2CO3 होगा, लेकिन H2CO3 अनस्टेबल होता है तो H2 और CO2 में टूट जाएगा। यहाँ पे H2SO4 H2SO4, ठीक है। यहाँ पे H प्लस और ये एसिटेट आयन एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है, विनेगर लाइक स्मेल। NH4 होल 3 PO4, यहाँ पे जो फॉस्फेट है तो यहाँ पे कायदे से क्या होना चाहिए, H3PO4 बनना चाहिए, लेकिन H3PO4 में से H2 निकाल दो तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं मैकेनिज्म, थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे चीज। हेलो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो, Yes. तो इसी तरह का यहाँ पे कुछ कुछ आपको समझना है। जैसे एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे आपके पास हाइपोफॉस्फेट हो, ठीक है, उसको हीट करने पे क्या होता है, HPO3, यहाँ पे आपको मेटा फॉस्फोरिक एसिड बन, ठीक है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। आप लोगों ने जिन लोगों ने क्लास 11th अटेंड किया है यहाँ सारथी में, तो उन लोगों को ये पता होगा मेटा मेटा एसिड कौन से एसिड्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना है कभी कभी फॉस्फोरिक एसिड को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। कितने लोगों को पता है ये फॉस्फोरिक एसिड को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्यों कहा जाता है, या फिर इन अदर वर्ड्स ऑर्थो किस एसिड के नाम के आगे लगाते हैं? हेलो, ये सब चीज नहीं पढ़ा है आपने? बालको कुछ तो बोलो, हाँ ना? नो सर। नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक होता है रूल ऑफ ऑर्थो, ठीक है। रूल ऑफ ऑर्थो क्या कहता है कि हम लोग ऐसे एसिड के सामने ऑर्थो लगा सकते हैं जिससे डिहाइड्रेशन करने के बाद भी हमारे पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा H3PO4 जैसे है, H3PO4 का अगर हीट किया और इसमें से एक H2O आपने निकाल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल दो तो ये HPO3 बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी इसका +5 था, यहाँ पे भी इसका +5 है, लेकिन फिर भी इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ है, तो इसको हम लोग इसके नाम के आगे ऑर्थो लगा सकते हैं, ठीक है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। और फिर H2O निकालने के बाद जो एसिड बनता है उसमें के नाम के आगे हम लोग मेटा लगाते हैं, ठीक है। दिस इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सिमिलरली और कोई एसिड आपके ध्यान में है जिसके नाम के आगे आपने ऑर्थो देखा हो? क्लास 11th का ही एसिड है, पक्का सबने देखा होगा उसको। कुछ याद आ रहा है? हेलो सर, ऑर्थोबोरिक एसिड। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो वो क्या होता है हमारे पास, H3BO3, उसको भी हीट करो, H2O निकालो तो क्या हो जाएगा, HBO2 बन गया। तो H2O निकालने के बाद भी क्या है, एक हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड, और इसको क्या बोलेंगे, मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। तो ये तो नाम का बात था, ठीक है। अब हम लोग इतना पढ़ के हो रहे हैं इसके बारे में, तो एक रूल आप लोग को जनरली ध्यान में रखना है कि मेटा एसिड्स जो होते हैं हमारे, मेटा एसिड्स, 1 सेकेंड, एक बार ये पन्ना उड़ जाता है फिर डिफोकस हो जाता है। ये स्क्रीन क्लियर है ना? हेलो, यस सर। यस सर। तो जो हमारे मेटा एसिड्स होते हैं, ये पॉइंट आप नोट बना के याद रख सकते हैं। मेटा एसिड्स एग्जिस्ट एज पॉलीमर्स, ठीक है।
मेटा एसिड हमारे क्या करते हैं, पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और भी इनके बारे में डिटेल्स है, आप किसी क्लास 11 स्टूडेंट से केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स ले सकते हैं, नहीं तो हम खुद अपलोड कर देंगे ग्रुप पे, ठीक है। तो ये होता है आपका रूल ऑफ सर ये चीज सिलिकेट्स में देखने को मिलता है? सिलिकेट्स में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि सिलिकेट में H2SiO3 रहता है, ठीक है। उससे अगर H2O निकालोगे हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। इसलिए सिलिसिक एसिड को आप ऑर्थोसिलिसिक नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा। सल्फ्यूरिक एसिड को भी आप ऑर्थोसल्फ्यूरिक नहीं बोल सकते, क्योंकि H2O निकल जाएगा, उसका हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका। ये सब रिएक्शंस आपको क्या करने हैं, मेमोराइज करने हैं, ठीक है। हम सारा शीट ग्रुप पे डाल देंगे, तो मकते रहना बैठ के। उसके बाद एक होता है रूल ऑफ एवरेज। ये हमारा रूल ऑफ एवरेज क्या कहता है कि जनरली अगर अमोनियम का कुछ कंपाउंड हम लोग लेते हैं, नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। जैसे इधर हमने क्या लिया, NH4NO2, ठीक है। इसको जब हीट करो तो क्या होता है, जो कंपाउंड में जिधर भी नाइट्रोजन रहेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों का एवरेज होगा। जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। दोनों का अगर एवरेज निकालो तो क्या होगा, 0। तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, ठीक है। सिमिलरली अगर कुछ और कंपाउंड ले लो, NH4, इसको हीट करना है आपको। नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -3, यहाँ पे +5, तो एवरेज दोनों का क्या आएगा, +1। अब नाइट्रोजन का कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसमें +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो N2O है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, इन दोनों का एवरेज, ठीक है। सिमिलरली कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस दे सकता है, जैसे N2H5NO2, इसको हीट करो क्या बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पहले इसका निकालो, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसे फॉर्म में है, हमारा N2H5 प्लस के फॉर्म में होगा और NO2 हमारा माइनस के फॉर्म में होगा। तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलो, +3 +3 नहीं, +3 कैसे होगा, -3 -3 भी कैसे होगा, सर -2 -2, ठीक है। -2 इंटू 2 -4 और +5H के कारण, ठीक है। तो नेट चार्ज +1। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज क्या होना चाहिए, +3 और -1 1, तो एवरेज हमारा क्या होना चाहिए, 1/2, सॉरी 1/3 एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। तो इसको अगर इस पे आप एवरेज रूल लगाओ तो -2 इंटू 2 +3/3, ये हमारा एवरेज आना चाहिए। तो एवरेज हमारा क्या है, -1/3। अब नाइट्रोजन का कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 है, किसी को कुछ ध्यान में है, हाइड्राजोइक एसिड सुना है आप लोगों ने, हाइड्राजोइक एसिड HN3, ठीक है। ये हमारा एसिड होता है हाइड्राजोइक एसिड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1/3 है, ठीक है। तो ये बनता है। तो ऐसे रूल ऑफ एवरेज आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है, अगर कुछ ऐसे हीटिंग वीटिंग हो तो ऐसे कर देते हैं। सर ये रूल ऑफ एवरेज का वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का वो जो मतलब रूल है वो वाला? नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ये रूल नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो है उसका जो एवरेज होगा वही हमारे प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, इस टाइप के कंपाउंड्स में अगर हीट करते हैं तो ऐसे होता है, ठीक है। अब हम लोग इतने सारे रिएक्शंस में हम लोग देखें अमोनिया का, तो हम लोग अमोनिया के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अमोनिया का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। उसको अगर आप किसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कुछ ऑक्साइड होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, या फिर मर्क्यूरस ऑक्साइड हो गया, या फिर Ag2O हो गया, नोबल मेटल्स के जो ऑक्साइड्स है, इससे इसको पास करो तो नाइट्रोजन गैस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। दिस इज अ टेस्ट फॉर अमोनिया।
ठीक है, इसको ध्यान में रखने का। ठीक है, तो ये था हीटिंग इफेक्ट हमारे अमोनियम सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, अब लोग हीटिंग इफेक्ट्स देखते हैं अगले कैटेगरी के लिए, दैट इज फॉस्फेट सॉल्ट्स। फॉस्फेट सॉल्ट्स पे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, ठीक है, तो फॉस्फेट अलग अलग सीरीज बनाएंगे, जैसे हम सोडियम के साथ ले रहे हैं, तो दिस इज सोडियम फॉस्फेट। इसको अगर हीट करो तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसका दूसरा फॉस्फेट लेते हैं Na2HPO4, इसको अगर आप हीट करो तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो पायरो बनेगा। ठीक है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये पायरो सीरीज में जाता है। ये सब डिटेल्स एक्चुअली हम लोग पायरो कब लगाते हैं, मेटा ऑर्थो, ठीक है, ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, हम उसके नोट्स डाल देंगे, आप लोग एक बार उसको देख लेना। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शंस आपको याद रखना है। इसको अगर हीट करो तो NaPO3 यहाँ पे मेटा बन जाता है। ठीक है, जैसे पिछले केस में हमने देखा था मेटा फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, HPO3, तो उसका जो सॉल्ट होगा NaPO3 वो हमारा क्या हो गया, मेटा। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखना है, तो इसके लिए आप ये रूल ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, रूल क्या है, इफ even number of ionizable hydrogens are present, ठीक है, तब क्या बनता है, मेटा। और if odd number of ionizable which are present, तब क्या बनता है, पायरो। ठीक है, जैसे कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। NaNH4 HPO4, इसको हीट करने पे क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयोनाइजेबल H प्लस कितना है, एक तो ये अमोनियम से एक H प्लस आएगा, और ये जो हमारा अनायनिक पोर्शन है इससे एक H प्लस आएगा, तो हमारे पास दो आयोनाइजेबल H आ गए, दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आ गए। तो इवन नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटा। और सोडियम का मेटा कंपाउंड क्या होता है, NaPO3 प्लस बाकी अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे इधर NH3 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, लाइक दिस। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मैग्नीशियम के साथ एंड सर ऑर्थो कब होता है? ऑर्थो नहीं होगा, मेटा या फिर पायरो। नहीं, ऑर्थो का कोई रूल नहीं है, मतलब ऑर्थो का कब होगा वो? नहीं, ऑर्थो का कोई रूल नहीं। दो ही केस है ना, या तो इवन नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होगा या ऑड। ठीक है, तो क्या था, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, लेट अस से PO4, इसको आपने हीट किया। यहाँ पे क्या है, एक ही हमारा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, तो इसमें क्या बनेगा, पायरो बनेगा। पायरो मतलब P2O7 4-। ठीक है, पाई मेटा का अनायन हमारा होता है PO3-, दिस इज मेटा अनायन। ठीक है, पायरो का क्या होता है, P2O7 4-। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का पायरो बना दो तो Mg2P4O7 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज पायरो, प्लस ऑब्वियसली हमारा वो NH3 तो रिलीज हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो इस तरह के छोटे छोटे रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। ये सब रूल्स फिर से जब आप P ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें नाइट्रोजन फैमिली में ये सब फिर से ये सब रिएक्शंस आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो बेटर है कि अभी से मेमोराइज करना शुरू कर दो।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर वो पेज थोड़ा फिर से दिखाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग वैसे ग्रुप में हम डाल देंगे ये सारे नोट्स। ओके, आगे बढ़े। हाँ हाँ है। फिर हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी तक जो बताया उसके बेसिस पे आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है NH4 होल 2 Cr2O7, इसको हीट किया तो एक कंपाउंड मिला X। मैग्नीशियम के प्रेजेंस में क्या किया, उसको बर्न किया तो एक कंपाउंड मिला Z। उसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस, तो एक कंपाउंड मिला Y। ठीक है, फिर इसमें हमने NaOH पास किया तो एक कंपाउंड मिला Y। Y के थ्रू हमने HGO पास किया तो कंपाउंड मिला X। ठीक है, ये X और ये X सेम है, ये Y और ये Y सेम है, तो X और Y को आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई X, Y, Z। ठीक है, 2 मिनट सोचो जल्दी, फिर ट्राई करो इसको जल्दी से। ठीक है, हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों से। X क्या है हमारा, N2. Cr2O3 N2 plus Cr2O3. एक मिनट रुक जाओ। X हमारा क्या है, N2. हाँ ठीक है। Z क्या होगा, NaCH3. क्या, मैग्नीशियम, Nitride. मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, Mg3N2। Y क्या है, Sir, NH3. NH3। ठीक है, वेरी गुड। किसी को डाउट है इसमें कैसे हो रहा है? सबसे पहले इसको हीट करेंगे तो हमने बताया था क्या, N2H2O और Cr2O3 वोल्केनो रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हम लोग लेंगे, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। और नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है, NH3 गैस रिलीज होता है। ठीक है, फिर इसको अगर हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो ये क्या है, एक एसिडिक, क्या बोलते हैं हमारा, एसिडिक कंपाउंड है ये। ठीक है, ये H2Cr2O7 और NH4OH का ये सॉल्ट है। ठीक है, तो NaOH के साथ ये क्या करेगा, NH3 रिलीज करेगा। ठीक है, जिसको HGO के प्रेजेंस में हमने अभी बताया था टेस्ट होता है NH3 का, HGO CU2O, सॉरी CuO Ag2O, उसके प्रेजेंस में क्या होता है, नाइट्रोजन पे रिडक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो ठीक है, तो हम लोग फर्दर पढ़ते हैं टेस्ट फॉर अमोनिया। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट, अमोनिया क्या है, हमारा एक बेसिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को सर एक बार रिएक्शन ब्लू रिपीट कर, कीजिए प्लीज। कौन सा रिएक्शन, सर ऊपर वाले क्वेश्चन का, ऊपर वाले क्वेश्चन का, NaOH वाली रिएक्शन। हाँ NaOH वाले रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा, NH3 गैस रिलीज होगा। अभी हमने बताया ना, NH4OH के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, NH3 गैस रिलीज होता है जनरली। ठीक है, और फर्दर आपको इससे हिंट मिलना चाहिए कि आगे HGO डाल रहे हैं। ठीक है, तो HGO कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इसमें यूज करते हैं, NH3 से N2 में रिडक्शन उसके लिए। ठीक है, ओके सर।
तो टेस्ट फॉर अमोनिया, सबसे पहला टेस्ट क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है इसका सोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड टेस्ट जो हमारा अमोनिया होता है NH3 HCl सॉल्यूशन के पास लाने पे क्या होता है, इसमें डेंस व्हाइट फ्यूम्स रिलीज होता है, किसके कारण, NH4Cl के कारण, डेंस व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है। like this. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, इसका स्मेल बहुत पंजेंट होता है, पंजेंट स्मेल, लेकिन ये बहुत काम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि जनरली लैब में जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं लगभग सबका ही टेस्ट क्या होता है, स्मेल पंजेंट होता है, ठीक है। तो पंजेंट स्मेल से ज्यादा कुछ आप गेस नहीं कर सकते, लेकिन इन सब टेस्ट से आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होते हैं इसके, CuSO4 के साथ अगर इसको आप रिएक्ट कराओ, अच्छा CuSO4 को क्या बोलते हैं हम लोग दुकान में, क्या अगर आपको CuSO4 चाहिए तो क्या बोलेंगे जाके, कुछ इसका कॉमन नेम होता है, पता है किसी को? ब्लू विट्रल। हाँ, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे विट्रियोल होते हैं, उनका आइडिया है किसी को? व्हाइट विट्रियोल क्या होता है, बताओ वाले, व्हाइट विट्रियोल, ZnSO4। ZnSO4, yes sir। ग्रीन विट्रियोल, FeSO4. फेरस सल्फेट। हाँ, फेरस सल्फेट, रेड विट्रियोल, पता है किसी को? दिस इज कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है, लाइक दिस। और H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये सब ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। हाँ, तो कॉपर सल्फेट के साथ इसका जो रिएक्शन होता है बहुत कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, CuNH3 4 SO4, ये बन जाता है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू, डीप ब्लू कलर, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, स्विट्जर्स रिएजेंट बुलाते हैं, स्विट्जर्स रिएजेंट, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है आपके अमोनिया का, कि अगर आप इसको ब्लू विट्रियोल से पास करो तो क्या डीप रेड, डीप ब्लू कलरेशन मिलता है आपको, ठीक है। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है NiCl2 प्लस NH3, तो यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स बनाता है NH3O6 प्लस 2, ठीक है। इसका भी कलर क्या होता है, डीप ब्लू, ठीक है। ये 5 टेस्ट हो गए। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग नेस्लर्स टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेस्लर्स टेस्ट क्या होता है, इसमें हम NH4 प्लस हमारे पास कटायन है, ठीक है, इसमें हम नेस्लर्स रिएजेंट डालते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट। इसके प्रेजेंस में हमारा एक कंपाउंड बनता है HgOHg NH2 प्लस I माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस, ठीक है। लास्ट आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक जो कंपाउंड हुआ था उसमें, सॉरी कंपाउंड हुआ था कह रहे, जो टेस्ट हुआ था उसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस का स्ट्रक्चर बताओ, आई थिंक नीट में आया था। तो आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस हमारा ये कंपाउंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक अमीनो आयोडाइड, ठीक है। आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस का कॉमन नेम हो गया, और इसका ब्राउन पीपीटी मिलता है हमको, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन, ठीक है। तो नेस्लर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर ब्राउन पीपीटी मिल रहा है तो हमारा गैस क्या है, अमोनिया है, ठीक है।
So this was another characteristic test for ammonia. आगे बढ़े. चलो ठीक है. हम लोग एक दो और अनायन देखते हैं, then we'll conclude the class. तो सबसे पहला अनायन जो हमने लिखा था that was CO3 2- कार्बोनेट. ठीक है, इसको देखते हैं कार्बोनेट के क्या क्या टेस्ट होता है. सबसे पहला टेस्ट विथ एसिड. ठीक है, टेस्ट विथ एसिड क्या होगा हमारा, जैसे ही कार्बोनेट अनायन हो, उसको अगर H+ मिले तो कौन सा गैस रिलीज करता था, CO2. ठीक है, CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होता था. अब CO2 को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, डिटेक्टिंग CO2. तो इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है CO2 का. सबसे पहला लाइम वाटर टेस्ट. ठीक है, जिसके बारे में आप लोग बचपन से ही क्लास 6-7 से ही पढ़े जा रहे हैं, है ना. क्या करता है CO2 लाइम वाटर को क्या बना देता है, मिल्की बना देता है. ठीक है, तो यहाँ पे CaCO3 बन जाता है, विच इज द कॉज ऑफ वाइट टर्बिडिटी और मिल्कीनेस. ठीक है, और फिर इसमें एक्सेस ऑफ CO2 पास करो तो क्या होता है, टर्बिडिटी डिसअपियर्स. ठीक है, क्यों डिसअपियर होता है, क्योंकि HCO3 बन जाता है और टर्बिडिटी डिसअपियर्स. टर्बिडिटी डिसअपियर्स. ठीक है, तो ये होता है आपका लाइम वाटर टेस्ट. सिमिलरली कैल्शियम की जगह यहाँ पे बेरियम भी सिमिलर काम करेगा, वो भी हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है. ठीक है, तो उसका भी एक टेस्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बराइटा वाटर टेस्ट. ठीक है, बराइटा वाटर टेस्ट में क्या करता है, CO2 प्लस BaOH2 क्या बनाता है, BaCO3 which gives white turbidity. सब पूरा आइडेंटिकली रहता है दोनों. ठीक है, व्हाइट टर्बिडिटी. फिर इसमें एक्सेस पास करता है CO2, एक्सेस CO2, तो यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट बनता है और टर्बिडिटी डिसअपियर्स. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, ये चीज क्लियर है. हेलो, सर Yes, sir. टर्बिडिटी के ऊपर का आपने क्या लिखा है, विद इन ब्रैकेट? विद इन ब्रैकेट टर्बिडिटी. अच्छा, ये इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, डिसॉल्व हो गया हमारा. ठीक है, ओके सर. ठीक है. ये पहला टेस्ट हो गया आपका, टेस्ट विथ एसिड. सॉरी, इसको नंबर 1 कर लो. दूसरा टेस्ट, carbonate PPTs, carbonate precipitates are soluble in soda water. ठीक है, सोडा वाटर किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास BaCO3 है, तो BaCO3 का तो व्हाइट PPT रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर इसमें सोडा वाटर हम डालें, सोडा वाटर मतलब कार्बोनेटेड वाटर. ठीक है, दिस इज ओनली योर सोडा वाटर. तो यहाँ पे क्या बनता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है और PPT क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो ये एक अनदर आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो गया. अगला रिएक्शन विथ PbNO3 लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन. ठीक है, तो अगर कंपाउंड में हमारे पास ये अनायन है, कार्बोनेट अनायन, इसमें हम PbNO3 डालते हैं, क्या होता है, PbCO3 बन जाएगा, विच गिव्स व्हाइट PPT. ठीक है, और ऑब्वियसली नाइट्रेट आयन आपका क्या हो गया, अलग हो गया. ठीक है, तो सबको पता है ये Pb हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है इन नेचर.
दिस कंपाउंड इज ऑल्सो क्या है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है तो दिस गेट डिसॉल्व्ड इन soluble in acids and bases also, ठीक है। सो लाइक दिस, जैसे इसका रिएक्शन देख लो कैसे ये डिसॉल्व करता है एसिड और बेस में। PbCO3 अपने पास, बेस में डालो NaOH, ठीक है। तो क्या बन गया, PbOH होल 2 प्लस Na2CO3, ठीक है। फिर फर्दर इसमें NaOH डाला, PbOH होल 2 प्लस NaOH, तो यहाँ पे Na2PbOH होल 4 बन गया विच इज सॉल्यूबल, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करता है ये हमारा एसिड और बेस में सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट हुए अभी तक, इस तरह से और भी टेस्ट हैं। टेस्ट नंबर 4, रिएक्शन विथ AgNO3। AgNO3 के साथ क्या होता है, यहाँ पे कार्बोनेट आना, AgNO3 बना इसको, तो क्या बनाएगा ये Ag2CO3, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट। अब Ag2CO3 को हम लोग बहुत तरीके से इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है? जैसे इसको अगर आप हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको अगर टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप हीट किए, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag2O में विच इज ब्राउन इन कलर, ठीक है, अलॉन्ग विथ CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसको फर्दर आप हायर टेम्परेचर पे गर्म किए 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये सिल्वर प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा प्लस CO2 ऑब्वियसली, ठीक है। फिर इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर कहीं से आपने साइनाइड आयन डाल दिया, ठीक है, साइनाइड आयन डाला या फिर क्वेश्चन में KCN दिया होगा, NaCN दिया होगा, ठीक है, कहीं से भी इसको साइनाइड आयन मिल गया, तो ये साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बना देता है CN2 माइनस, और ये क्या होता है, पानी में डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। फर्दर अगर इसमें आपने अमोनिया डाल दिया NH3, तो इसके साथ भी ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है और डिसॉल्व कर जाता है, AgNH3 होल 2 प्लस, ठीक है। और इसको अगर आपने छोड़ दिया दिस ऑन स्टैंडिंग, नाइट्राइड बना लेता है अपना Ag3N, which is also called as ferminating silver। और ये क्या होता है, बहुत विगरसली ये टूट जाता है, इट इज यूज्ड इन एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है इसका Ag प्लस N2, Ag इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस है, ठीक है। और कुछ टेस्ट है कार्बोनेट आयन के, ठीक है। फिफ्थ में 2 पार्ट है एक्चुअली, टेस्ट विथ HgCl2। HgCl2 क्या है, HgCl2 को हम लोग बोलते हैं कॉरोसिव सब्लिमेट। कॉरोसिव सब्लिमेट इसका क्या है, कॉमन नाम है, ठीक है। तो HgCl2 के साथ यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कार्बोनेट आयन है,
Hg+2 है, okay? और वाटर है, ये कंपाउंड बनाता है 3HgO डॉट HgCO3 which is reddish brown in color. इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मर्क्यूरिक कार्बोनेट। ये आपका एक और टेस्ट हो गया। 5 का सेकंड आप लोग कह सकते हैं, टेस्ट विद Hg2Cl2। Hg2Cl2 इज कैलोमेल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलोमेल। इसके साथ जो इसका टेस्ट होता है दिस इज येलो, इसको अगर आप हीट करो तो ये Hg प्लस HgO प्लस CO2 में ब्रेक कर जाता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, आगे के टेस्ट हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें धीरे धीरे करो, धीरे धीरे आप लोग मेमोराइज करते चलो जैसे जैसे चीज चल रहा है, ठीक है। नहीं तो एक बार एंड में क्या होगा, बहुत ज्यादा आपके ऊपर लोड पड़ जाएगा, ठीक है। तो आज आपको हल्का सा ग्लिम्स मिला इस चैप्टर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे रिएक्शंस आएगा आपके सामने, बहुत सारे कंपाउंड्स के कलर याद करने होंगे, ठीक है। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप लोग धीरे धीरे सबको क्या करो, मेमोराइज अच्छे से करते चलो, ठीक है। आज जो पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है? No, sir. चलो ठीक है, then we are in, हाँ, then we are ending the class here, okay. Thank you very much. Thank you, Thank sir. you, sir.